ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ। ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹੋਗਾ? ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। 1 ਮਿੰਟ ਅਹਿਮਦ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਰੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਲੋਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਲਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾ ਮਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਹੈਂ, ਦਿਓ ਦਲੀਲ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਿਬਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਬਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਾੜ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਟॉपिक है, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को जी, जो टाइम हो तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी यार तुम सुन ले, पहले तो बैठे ने मिशनरी 400 ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਖੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम और उन्होंने खुलफा ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਕਿ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਈ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਤੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਦਰਸਾ ਤੋਂ ਹਿਫਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਨੇ ਅੱਧਾ। यार एक सेकंड यार, एक मुबशर साहब ये बात चली जी नहीं आगे, ये मिशनरी 4 साहब, मिशनरी साहब बोल रहे हैं, इनको 2 मिनट बोलने दें, इनको काफी देर से बैठे हैं जी। मिशन साहब, पॉलिटिक्स साहब खोलिए मैं है मिशन पोलाइट। सॉरी मुझे आप पूरा नाम नजर आया, तो मुझे जानते हैं, मुझे जट साहब अच्छी तरह, मुबशर साहब जी बस नाम चेंज किया। ये बात जो है ना, बात सुने अगर, तो आप समझते हैं कि इस चीज़ को हल करना है, जो तो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ जो इन्होंने कही है ना, ये शायद इरफान जट साहब बोल रहे थे कि जो लोग हमारी सफ़ों में होते हैं, राइट, लेकिन वो कम्प्लीटली तौर पे वो जमात के साथ नहीं होते, एतराज़ात करते हैं, ऐसे लोग बहुत जमात को नुकसान पहुँचाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो आप पर जिन्होंने पर्सनल अटैक जिन्होंने पहले किया वो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। कि जब हजूर ने खुद किसी को नामजद नहीं किया तो वो किसी को भी हक नहीं पहुंचता कहे कि ये है फलां है। इस चीज़ का भाइयों हल एक ही है, हल एक है कि हम बस अपनी, हर बंदा जो है ना अपनी ब्रॉड लगाए, उसको जैसे चाहे चलाए, कोई दूसरे में दखल ना दे, जो वो तबलीग करें उनको उस तरह करने दें। और इस बात से मत घबराएं, दो तीन चीज़ों से मत घबराएं कि फ़लाँ बंदा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह गालियाँ दे रहा है, फ़लाँ ये एतराज़ कर रहा है। ये तो मुकद्दर है, 100 सालों से सच्ची जमात का, 150 सालों से ये हमारा मुकद्दर है। एतराज़ भी आएंगे, ये हमें गालियाँ भी देंगे, मुनाफिकीन भी पैदा होंगे, वो नए नए एतराज़ात रोज़ाना घड़ कर लाएंगे। हमारा काम ये है कि हम रिसर्च करें और उनके जवाब ढूंढ के लाएं बस। बाकी जो ये करते हैं इनको करने दें। लेकिन एक चीज़ जो बाहर मैसेज आ रहा है ना, मसला ये है, ये जो भी नीचे बैठे हैं बड़े बड़े लोग रिकॉर्डिंग करने वाले ना, ये मुंह उठा के जो देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये बस इस चीज़ को फिर बनाएंगे शोशा वहाँ जाके। देखिए जी, कादियानी लड़ पड़े आपस में, बस ये हमें देखना पड़ेगा, इस चीज को जरा समझदारी से सर ये handle एक करना साइड पे ही पड़ेगा। हो सकता है, जब भी हम ब्रांड लगाते हैं और हमें माशाल्लाह आप जैसे भाई जो हैं वो आके हमें समझाते हैं, ये दूसरी साइड पे क्यों नहीं समझाते? मैं बिल्कुल आपको समझा नहीं रहा, आपको नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह नहीं यार, रहा, पूरी औकात है। एक मिनट मिशन मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से ही है उनको। नहीं। देखें, आपने एक बात कह दी, वो तो जमात के साथ है ही नहीं ना, हम नहीं, तो मैंने जमात के साथ है बिल्कुल ना। देखिए, नहीं हमने कभी नहीं कहा कि वो जमात के साथ नहीं है। नहीं, एक बंदे ने अभी एक बंदे का नाम लेकर कहा, नहीं किसी ने नहीं कहा। जरा मैं जट साहब बड़ी अच्छी गल कर रहे ने, सारी मैं गल ते तहत पहुंच गया, उन्होंने बड़ी प्यार ना हर गल समझा दी है। तुसी उन्होंने बहस ना करो, मैं तुम एक बंदे का नाम लिया गया है कि वो इतराज करते हैं, अपने आप को अहमदी कहते हैं, पर खुलफा को बैठ के उधर ही गालियां निकलती हैं और वो ऐसे इतराजात करते हैं। तो दिल बात ये है कि तुरुस सच्चर साहबा उमेर बाब साहबा को कॉल करके व्हाट्सएप के ऊपर कहती हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, ठीक हो गया। हाँ, फिर हमें नहीं, बात कोई इतराज नहीं है। बात भाई प्यारे भाई जी सुन लेना। जी जरूर। वो तुरसच्चर साहबा का औरत कार्ड खेलते हैं अलीम साहिब, ठीक है। और 1.5 महीना पहले जो है वो उसको क्या कहते हैं, उमेर बाब साहबा के साथ एक पर्सनल टॉक होती है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जनाबे वाला ये कहती हैं कि मुझे कोई अहमदी दोस्त जो गालियां जिन्होंने दी हैं वो तो हम उसको कंडेम करते हैं, जिसने भी गाली दी है, ठीक है ना। हाँ, मुनाफिक जिसने बोला है, हम तो आज क्योंकि वो चीजें सामने आती हैं तो वो चीजों को देख के हम कहते हैं कि ये मुनाफिकत होती है, ठीक है। और उसके बाद अब ये जाके सीकर छोरे की बराड़ पे जाके कहें कि मुझे जमात से उन्होंने निकलवाया है, मेरा अखराज हो गया है। भाई आप तो खुद पहले इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, जो आपके नजदीक सच्चा और हकीकी इस्लाम है, फिर रोने की क्या जरूरत है भाई? देखिए, इसमें सिंपल हो गया, छोटा सा जवाब दूं जट भाई, ये तो बड़ा सिंपल मायदा हो गया ना कि एक बंदा कहता है कि अब मैं जमात में नहीं हूँ, ठीक है, उसके बाद जो मर्जी करे जाके, वो तो मुखालिफ हो गया ना, ये हमारा मुखालिफ हो गया। सवाल नहीं समझ रहे। एक बंदा पहले ऐलान करता है, कहता है कि मैंने जमात अहमदिया छोड़ दी है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मुझे ये वाला इस्लाम पसंद है, मैं इस इस्लाम के अंदर आ चुकी हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद जमात के ऊपर क्यों बात की जाती है कि जमात ने मेरा खराज किया, जमात ने मुझे निकाल दिया? इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। ये एक ही शेख वाली मिसाल ले लें आप, हम एक ही शेख को कैसे, इस तरह तो बहुत सी मिसालें हैं। मोहतरमा एक शेख की भतीजी हैं, ये भी मैं दोस्तों को बताना चाहता हूं। देखिए, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक बंदा कहता है कि मैंने जमात छोड़ दी, मुझे जमात से ये एतराज है, मुझे जो उसको निजाम जमात से एतराज है ना, उसका हमने जवाब नहीं देना, क्यों हमें नहीं पता। भाई जाओ जाके निजाम जमात से पूछ लो। आपको अकीदा का एतराज है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों पर कोई एतराज है, वो लाएं, हम जवाब देंगे। हम बैठे हैं यहाँ पर, कितने लोग बैठे हैं, तो वो जो मर्जी करते जाए। वो एक ही शेख का मुंह किसने पकड़ लिया और उसने 20 साल में कर क्या लिया? क्या उखाड़ लिया उस बंदे ने? ये बताओ, उसने उखाड़ क्या लिया 20 साल में? उस बंदे ने क्या उखाड़ा? कुछ उखाड़ा है? वैसे जग्गा जी म्यूट लाना जग्गा जी, बड़ी अहम वो तो सिंपल बात हो जाती है कि भाई आपको जो निजाम जमात पे इतराज है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो आपका जमात जाने और आप जाने। आप हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब पर, कोई भी हमारे अकीदे पर इतराज लाएं, हम आपको जवाब देंगे, सिंपल। हाँ, अगर वो आपका नाम मेंशन करके आपको डिफेम किया जाता है, बिल्कुल आपको हक हासिल है, आप उसका जवाब दें, यहाँ पर बैठ के बताएं भी हम अब जो हम जवाब दे रहे हैं कि टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा नाम लिया गया है, मेरा हक है कि मैं दोस्त आपको हक हासिल है, आपको इसका हक हासिल है, आप अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, आप गाली नहीं निकाल रहे, बिल्कुल आपको हक है इस चीज का। इमरान कालो साहब सही कह रहे हैं, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। नीचे इंतहाई डेंजरस किस्म की मखलूक बैठी हुई है, सीकरी और
पता नहीं कौन कौन बैठे हो, राजा जावेद, टेढ़ सरकार। तो अपना वो कहते हैं ना, वो लेने आए हैं, वो क्या कहते हैं, खाना है हमसे। हाँ आप जी। टुकड़े फेंकेंगे, ये नीचे जो नाम ले आज ये के अपने बाद- टुकड़े इकट्ठे करेंगे। आज के बाद सीकर शोरा साहब की फैमिली और राजा जावेद, टेढ़ खान साहब, आज तो बात ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ कोई ऐसी गल नहीं करेंगे कि जिसे तुसी बाद च बैठ के अपने मिशन भाई देखें, एक तो सॉरी नाम टू से लिया ये तो जाता है। भिखारी हैं, मेरी मिशन बात भाई, सुने, आप सॉरी टू से डॉक्टर लास्ट साहब बात को कह जानते लेने हैं, दें, मिशन साहब लास्ट बात कह लेने दें, ये भिखारी हैं, दर दर जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर जाके अपनी ब्रॉडे इस डेटे पे चमकाते हैं, ये तो भिखारी हैं। मिशन भाई जो एक बैठे चीज हैं मैं नीचे। आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे भाई, जी, जी, ये जी, बताएं कि ये 4 बंदों का तो लिस्ट में आ गया कि वो कौन कौन है ना, और 4 बंदों का तो अभी तक नाम नहीं लिया गया, और 7 नाम लेके अहमद जट फैमिली, इमरान कालू फैमिली, मुबशर रजा फैमिली, ये क्या है भाई? अच्छा छोड़ दें, अब ना बहस करें। नहीं भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा अली अकबर भाई, जब तक ये किसने कहा है? ये नहीं किस आएगा, इसने मुझे exactly? धमकी लगाई है, मैंने रिकॉर्डिंग की है इसको, ये डॉक्टर होगा, अपने घर में डॉक्टर होगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने इसे कोर्ट के अंदर घसीटना है। अब इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, इसको कोर्ट के अंदर मैंने अब घसीटना है, ये भूला हुआ है किसी और बंदे का। भाई मुझे बोलने का मौका मिलेगा, 1 मिनट का आधा घंटा कर दिया आप लोगों ने। जी करें माजिद साहब। अभी मीठा माजिद मीठा साहब आपके पास पानी, ग्रीन कार्ड है, आप हमें खामोश करवा सकते हैं। मीठा मीठा पानी ऊपर से गिराते हो, ग्रीन कार्ड ग्रीन का अच्छा मक्खन लगाते हो। बात ये है कि जेड़ा बंदा सोची पिया वो कमू गया, अच्छा कम खिच के रखो। अहमद साहब ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ आहा ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੀ। आहा ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ किथे ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਸ ਕਰ ਕੁਝ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਡੇ ਬਦਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਡੇ ਬਦਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। अच्छा ये सैफी साहब भी आ गए हैं उस ਚਲੋ लिस्ट में, ਮੈਂ चौथा बंदा उस ਮੈਂ लिस्ट में। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਸ। बहुत शुक्रिया ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ हजरत सैफी रजी अल्लाह अन्हो साहब तशरीफ फरमा ने। मजना ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रीन कार्ड ਦਿੱਤਾ ਹੈ माजिद साहब, ਇਹਨਾਂ गलत बट भाई उतना ही रखें जितना उन्होंने किया है, उतना आपको हक है, वही मैं अच्छे बताना अल्फाज चाहता हूं में ना, उसमें मजम्मत चौथा करें। नंबर है सैफी फैमिली का है, ठीक है। सैफी फैमिली आपकी वजह से आज खुतबा दिया गया है, ठीक है, तो आप डरे क्योंकि धमकी दी गई है, उसमें चौथा नंबर आपका है। बाकी 4 मैं तलाश कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं कि 4 बंदे हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट अहमद जट फैमिली, इमरान कालू फैमिली, मुबशर रजा फैमिली, सैफी कनाडा वाले, सैफी वो कादियान वाले लोग ना समझे, ये जो सैफी हैं, ये जो सिकर छोरे के दोस्त हैं, ये इनकी मैं बात कर रहा हूं, इनका चौथे नंबर पे लिस्ट में नाम है। बाकी 4 कौन है मैं वो भी जानना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब आपने मुझे जो धमकी दी है, मैं बार बार कह रहा हूं, इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो आपको मैं बताऊंगा कि किसी को धमकी कैसे देते हैं, ठीक है। अच्छा जैसा कि मैं बात कर सकता हूँ। यार मैं डर गया, मैं ब्राड बंद करने लगा, मैं डर गया। राजा टेंड थल्ले राजा जवेद टेंड वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व जैसा मैं बरकातहू। सुबह सोना यार, एक मिनट यार। नमाज वास्ते उठना है। क्योंकि अगर मौलवी साहब को उठाना है, ये किसी और की राय नहीं लेना। बैठे आप बैठे हैं। मौलवी साहब की जो है मेरे उस्ताद है, 1 गंडा 1 पग ते 2 किलो मिठाई का डब्बा वो नहीं कबूल कर रहे, उन्होंने नहीं होना इस मामले चो। ये जो सीकर बंदा है ना, मैं तो इसको बड़ा अच्छा इंसान समझता था, ये तो इंतहाई घटिया है इसने जो पिछले दिनों अरे वो ब्राड लगाई गई है, बात सुने अब। वो डॉक्टर जकरिया और लीम साहब ने ब्राड लगाई है और हजूर का खुतबा लगा के और साथ अहमद नजीर साहेब और सिकर छोरे को बिठा के, सही है, बिठा के वो ब्राड चमकाई गई है। भाई बात करने दोगे मुझे अभी आप लोग यार? वालेकुम सलाम जी। चले वो बैठे हैं, उनसे बात यार, करना एक मिनट सीधी यार, बात अपनी सर। अपनी बारी में बात अच्छा करेंगे। सिक्कर को और यार वहाँ अल्लाह दा बिठाया वास्ता है हाँ यार। जी, सिकर को भी बिठाया गया, अहमद नजीर को भी ऊपर बिठाया गया। अच्छा 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 हाँ जी। ठीक और है। यार एक मिनट यार, एक मिनट। एक मिनट साफी भाई प्लीज। और यार तुसी सोना है, ले। ओ मैं सोना है, मैं सो जाना, सुबह नमाज से उठना कर प्लीज। लो यार। फिर मैं चल जाना। अच्छा अच्छा ये तो अच्छा चले। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ जट साहब इस मामले में? कोई सर आप दुआ कर सकते हैं, मुझे तो अब डर लग रहा है, मैं ब्राड बंद करने लगा हूँ, मैं डर गया हूँ, सही है।
बात ये है कि मैं डर गया हूँ। सैफी साहब का आखिरी पॉइंट लेना, उसके बाद मुबशर कालू साहब जो हैं, नहीं इमरान कालू साहब वो स्पीच करेंगे, उसके बाद 1 मिनट को ले ले जिसने भी बात करनी है। उसके बाद क्योंकि मैं डर गया हूँ भाई, मैं डर गया हूँ, मैं डरना चाहिए, सिर्फ किसी से नहीं डरना चाहिए। तो बाकी ये सब इंसान की सिर्फ वक़्त जहाँ पे वो खड़ा होता है ना, जहाँ पे गोरा होता है, सिर्फ उसकी औकात इतनी सी होती है। जी डरना सिर्फ अल्लाह ताला से चाहिए। जी। तो इसलिए लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ, मुझे आपकी टीम में से भी एक आधे बंदे का, या जज साहब आपका बल्कि नंबर मैं कालू साहब से मैंने कई दफ़ा। सर हमारी कोई टीम नहीं है, हम वैसे दोस्त बैठते हैं, हमारी एक ही टीम है, ठीक है। जो जैसे खुदाम अहमदिया होती है, हम खुदाम भी हैं, अंसार भी हैं, हमारे साथ आके बैठते हैं। मैं हर टीम में खेलना पसंद करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू दो यार। ओपन आई साहब, कम से कम इस मैसेज के ऊपर आप खुद पहले गौर कर लें और उसके बाद फिर नीचे लिखें ना। और पप्पू मलिक साहब आज टाइम नहीं है, प्लीज आप रिक्वेस्ट ना डालें। पप्पू मलिक साहब नीचे तशरीफ। वालेकुम सलाम, सैफी साहब को बात करने दें जी। हाँ जी, बात ये है कि मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को जी कि आप हमारे भाई हैं, हम एज अहमदी आपकी इज्जत करते हैं, ठीक है, इसलिए कि आप हमारी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है जी। बाकी ये जो डर डूर है ना, ये तो हमने कभी पाला ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। अगर उन्होंने कोई भुलेखा निकालना है अपना तो वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो बातें हैं ना, ये हमारे साथ मुनाफिकतें नहीं चल सकती। मैं उधर भी कह रहा था कि ये हुजूर का जो खुतबा तुम लगा के बैठे हो, या हमने, वो हमारे लिए है, वो हमारे बड़े हैं, हमारे खलीफा हैं, उन्होंने हमें हुक्म किया है, हम उस पर हमारी जान भी कुर्बान है। और हमने अगर किसी को आज तक बुरा भला कहा है ना, तो इसी वजह से कहा है कि उसने पहले हमें टारगेट किया, हमारी जमात को टारगेट किया है, हमारे खलीफा को टारगेट किया है, खलीफा की वाइफ को टारगेट किया है, ठीक है ना। सुबूही बेगम की तस्वीरें लगवाई हैं इस आमिर खंजीर ने, और किधर गैरत मार गई थी इस डॉक्टर की और इस डॉक्टर की और अलीम की, कि उनको बिठा के ये लोग मिर्ज़ा साहब को गालियाँ निकलवाते रहे 4-4 मिनट 6-6 मिनट। मैं इनके घरों में घुस जाऊंगा अगर ये इतने बदमाश मान रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं नाम ले रहे हैं, तो ये मुझे जानते नहीं है, मैं इनको कितना गंदा करूँगा। और इन्होंने, इन बगैरतों ने आज भी लाइव लगाई है, और लाइव लगा के उस आमिर खंजीर को बिठाया हुआ है उसके ऊपर, जिसने पूरे टिकटॉक के ऊपर ये तहरीक चलाई कि सारी रात, शाहिद डड्डू इस चीज़ का गवाह है कि सारी रात उनकी खलीफा की वाइफ की तस्वीरें लगाओ, उतरे ना तस्वीरें। भाई ये बात किधर गैरत मर गई थी तुम लोगों की, ठीक है, एक मिनट, किधर गैरत मर गई थी डॉक्टर की। और ये अलीम जो है, ये तो एक नंबर का बगैरत इंसान है। मैं तो उधर भी लिख रहा था, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया अपनी लाइफ से। इस बगैरत ने बिठा के मिर्जा साहब की फैमिली को, उनकी वाइफ को, उनकी अम्मा को गालियां निकलवाई हैं, और सारी मिनट दिए जाते थे सैफी साहब, 4-4 मिनट दिए जाते थे। और ये वो जो मिर्जा साहब ने फरमाया है ना, खलीफा साहब ने, वो हमारे रूहानी बाप हैं, हमारी जान भी कुर्बान उनके हुक्म के ऊपर, उनके एक अल्फाज के ऊपर। तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोग ना अपने घरों के बाप बनो, जमात के बाप बनने की कोशिश ना करो, तुम लोगों को भी वार्ड दिया जाएगा, तुम लोग किसी भूल में ना रहना। और अलीम तो एक ऐसा मुनाफिक है, ऐसा गंदा इंसान है कि इसने अपनी पर्सनल पे भी वीडियोस बनाई हुई, लगाई हुई हैं, और उसमें भी वो वाली वीडियोस लगाई हुई हैं, और टारगेट कर रहा है वो। और वो मैसेजेस जो करता है मिर्ज़ा साहब को गालियाँ देने के, उनको भी वो लाइक करता है, ठीक है। और उसमें अगर इतनी पानी है ना उसके अंदर, या वो इतना बंदे का पुत्र है, उसको को हमारे साथ 1-to-1 बैठ के मेरे साथ बात करे, मैं उसको धो के रख दूंगा, मैं उसकी सारी होशियारी निकाल दूंगा। और ये गंदे लोग, ये गंदे बरेलवी मुशरकों के साथ बैठ के, ये आमिर खंजीर के साथ बैठ के इसने गालियाँ निकलवाई हैं मिर्ज़ा साहब की फैमिली को। और ये जो डॉक्टर है, ये उसका रिश्तेदार है, इसलिए ये डॉक्टर उसकी सपोर्ट में आ जाता है हर दफ़ा। ये दोनों रिश्तेदार हैं आपस में जी। सैफी भाई देखें, बात ये है कि अलीम साहब उधर बैठ के हमारे ऊपर ही बराड़ लगे, और बाद में हमें ही कॉल करके कहा जाए, ये सामने उसने कॉल किया, उसके बाद इसके जो दोस्त हैं, मेरे भी सारी बातें अहमदी एक दूसरे के दोस्त होते ही है ना, एक दूसरे को जानते होते हैं, उनसे भी इन्होंने कॉल करवाई है। और अलीम साहब ने मुझे कॉल की है 11:37 पे। ठीक हो गया भाई, क्यों कॉल कर रहे हो भाई, तुम उधर हमारे ऊपर बराड़ लगाओ, और हम तुम्हें जो है पर्सनल में कॉल तुम्हारी क्यों अटेंड करें भाई, बात करो, इधर आओ, बैठो। डॉक्टर साहब अभी नीचे आए थे,
पर्सनल में इन्हें कहा गया कि डॉक्टर साहब आप जो नाम ले रहे हैं 7 नाम, फैमिली का क्या ताल्लुक है भाई? बात आप हमारी करें। आप कह रहे हैं सबसे पहले मेरा नाम लिया है इन्होंने, अहमद जट फैमिली, मुबशर रजा फैमिली, इमरान कालू फैमिली और सैफी कनाडा वाले जो अभी ये बात कर रहे थे, ये फैमिली इनका लिस्ट में नाम है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब वो बाकी 4 रह गए हैं, प्लीज उधर तो हम आप कह रहे थे 4 हैं, तो प्लीज उधर 8 का भी अनाउंस कर दें। ठीक है, और आपने एक आपको पता ही नहीं है शायद, वैसे तो आप पढ़े लिखे हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ ਥੱਲੋਂ ਯਾਰ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਣਵਿਆਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਓ ਯਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। है मोहम्मद हुसैन, एक मिनट, अलीम वो बंदा है मोहम्मद हुसैन की आईडी से ये गया है हुसैनी मलून के पास, वो हुसैनी मलून जिसने 2 घंटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकलवाई हैं। और ये इस किधर की थी हजरत मिर्ज़ा साहब की, वो कि उन्होंने एक बंदे को देखा जिसने उनको सलाम किया 2-3 दफ़ा, उन्होंने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि तुम मुझे सलाम करते हो और मेरे आका को गालियां निकालते हो। ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੇ ਹੋ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾਫੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਤਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ ਜਨਾਬ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ, ਹਾਂਜੀ ਈਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੁਮੇ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੈਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਰ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਗੱਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਟੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਅਲੀਮ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੀਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ। अच्छा ये बताएं अपना मौलवी साहब, बात चले खुतबे के ऊपर ही करते हैं हम, कि बात खुतबा है हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सैयदुल्लाह ताला बिन नस्ल अजीज का, सही है? उसके ऊपर 8 बंदों में 4 बंदों का मैंने नाम बता दिया, उन्होंने नाम नहीं बताया, खैर पर्सनल में उन्होंने बताया था। अच्छा, खैर उनके ऊपर बाढ़ लगती है, तो उसके बाद ये बताएं कि उसके ऊपर आमिर नज़ीर साहिब को नासिर साहिब ब्लॉक करते हैं, 2 दफ़ा ऊपर आते हैं, उनको नीचे फेंकते हैं, उसके बाद ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर आमिर नज़ीर साहिब को कॉल की जाती है अलीम साहब की तरफ से, और आमिर नज़ीर साहिब जो हैं आपको पता ही है कि कॉल जो बंदा करे तो फिर अपनी बात पर सुना रहे होते हैं कि ये देखें मरज़ई अलीम ने मुझे कॉल की है। ठीक है, अच्छा, उन्हें कहा जाता है कि मैं देखता हूँ आपको किसने ब्लॉक किया है, आप आए मेरी ब्राड के ऊपर। ठीक है, और सीकर छोरे को भी अपनी ब्राड के ऊपर बिठाया जाता है, हालांकि एक जमाती मामला है। अगर आप समझते हैं कि 8 लोग, आपकी बात मान लेते हैं भाई, 8 लोगों के ऊपर ही खुतबा होगा, बाकी तो सारे मोमिनीन हैं, तो वही आमिर नज़ीर है, शायद ये भूल गए हैं कि जो कहता था कि मैं सोन लगा, और हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस दी वाइफ दी तस्वीरां तुसीं टांग के रखो। ठीक है, ਉਹੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਲਾਂ ਟੂਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੈਫੀ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਪਲੱਸ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਆਖਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਯਾਰ ਗਏ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਜ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲਾਈ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि अकबर तुम बरौर से उतर जाओ। मैं ले गया। मैं कहा वजह, आप लोगों ने खुतबा नहीं सुना? मैंने कहा जी नहीं सुना, मैं तो रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, रात को मैं तो काम पे हूँ। उन्होंने कहा जी खुतबा मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, खुतबा सुनो। और हजूर ने बड़ी सख्ती से मना किया ये जो तुम लोग इधर बैठ के बातें कर रहे हो, और अगर तुम इससे बाज ना आए तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट आगे भेज दूँ, मैं फिर मुझे नहीं कहना। ये मैं उन्होंने मैनू कहना, मैनू मतलब सीधा कहा कि मैं तेरी रिपोर्ट कर देंगा अगे ना। ਅੱਛਾ मैं बरौर तो उतर गया। मैं खुतबा सुनिया, हजूर के अल्फाज तुसीं भी सुने ने कि उन्होंने मना किया कि ए तुसीं गालां गूलां नहीं करनियां, ए काम नहीं करना, ए नहीं करना, ए नहीं करना। ਜੀ ਜੀ मैं वापस बराड़ से आया, मैं आके बराड़ बंद करा दी। मैं मजाड़ ने कहा सब बंदे थले ला दो। उस टाइम 60-70 बंदा सुन रहा सी। असीं कि हजूर का हुक्म आ गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मटके तोड़ ते शराब के साहबा कराम ने तुसीं बराड़ तोड़ दो। हुक्म आ गया ना, कान च आवाज़ पै गई, हजूर ने मना करता काम ਜੀ ਜੀ कि यह काम नहीं करना। असीं उस टाइम बराड़ बंद कर दी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने तुसीं वापसी फोन सुन के खुतबा सुन के ना जो सेंड किया 10 मिनट का, मैंने वापस कॉल करो। मैं वापस उन्हें की कॉल, मैं कहा जी हुक्म करो हुण की कहंदे हो। उस हुक्म के दरम्यान ना डॉक्टर साहब ने 4 बंदियां दे नाम लिते। उन्होंने कहा कि यह जिहड़ा काम चल रहा है ना, ये रिपोर्टां हजूर तक पहुँच गई ने, और इन्हां दी वजह नाल हजूर ने खुतबा दिता है। यह जिहड़ा अहमद जट फैमिली है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਫੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਿਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੱਚਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਖਾਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਮਰਕਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਾਲਿਬਨ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਸਕਣਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਣਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਸਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਸ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਮਦ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦੋਈਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਅਹਿਮਦ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾਤੀ ਤੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਮਤ ਉਹ ਬਰਕਾਤੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖੁਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ? ਸੀਕਰ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੋਏਬ ਰਾਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੁਕਮਾ ਹੋ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗਿਣਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ 8 ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 8 ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 4 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 8 ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਤਬਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਆਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦੇਣ, ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਭੰਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਸੀਕਰ ਸ਼ੋਰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ। ਇਹ ਵੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੁਕਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਸੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਯੂਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਭਾਈ,
clear instructions have now been given by ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੜੋ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਪੜੋ, ਸਹੀ ਪੜੋ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ clear instructions have now been given by ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਫੋਲੋ them ਐਂਡ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵਿਦ ਮੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵਿਦ ਮੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਹੋਲਡ them। एक सेकंड जी जी देखें, एक नीचे सनशाइन साहिबा हैं, ठीक है, वो कह रही हैं तैयार हो जाओ तुम सब गालीबाजों, तुम लोगों का अखराज लेटर बहुत जल्द आने वाला है। ओके जी ओके। अच्छा एक सेकंड यार, 1 मिनट म्यूट लाओ यार, 1 मिनट म्यूट लाओ, म्यूट लाओ। देखो एक ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ। नहीं जगह भाई तुसी प्लीज 1 मिनट ठहर जाओ प्लीज। Okay. हाँ जी ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ यार, ਵਿੱਚ 1 मिनट, ਮਾਰਿਆ एक ਜਾਂਦਾ। चुप कराओ, दूजा शुरू हो। 1 मिनट सुन लो मेरी गल, उस बाद सारे बोल लियो। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਵੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਬਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਣਾ, ਇਹ ਧਮਕਾਣਾ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਔਨ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਬਾਈਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸ਼ਾਰਟ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ let's follow them and move forward। अच्छा नहीं थले आ गए सी। if anyone has any difference with me you are free to hold them, but today a historic sermon has been delivered, okay, we all should respect that, please take a moment to reflect, छोड़ो यार, let's obey। आय हाय माँ सरकेज है। आप जब ये कहते हैं ना कि लेट्स मसूमियत तो देखिए आप इनकी। एक मिनट सैफी भाई, लेट मी फिनिश यार, एक मिनट गल ते कर लेंदे करो यार, मैनू गल ते कर लेंदे करो। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ फरमा रहे हैं we all should respect, हम सबको एहतराम करना चाहिए, एंड प्लीज टेक अ मोमेंट, एक वक्त थोड़ा सा टाइम निकालो टू रिफ्लेक्ट, उसके बारे में सोचने का। छोड़ो यार, लेट्स ओबे। ये ओबे करने वाले हैं। ओबे का मतलब है कि हमें ओबे करना चाहिए हजूर को। ये हजूर को ओबे करने वाले अलीम साहब हैं, जो सीकर की ब्रॉड पे जाते हैं। एक अहमदी उधर बैठा होता है, उसका नाम होता है सेठी, और उसके साथ वो सीकर उस पर तंज करता है जमाती हवाले से। उस बंदे के पास इतना नॉलेज नहीं होता, और ये अलीम
محمد حسین کی آئی ڈی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور سیکر کے ساتھ مل کے اس احمدی پہ طنز کرتا ہے، اس کے نالج پہ طنز کرتا ہے، اور وہ جو بیچارہ دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ طنز کرتا ہے. میں پرانی بات نہیں کر رہا، کل کی بات کر رہا ہوں. سب لوگ سیکر کی براڈ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اس بندے نے اس مسکین احمدی کے ساتھ طنز کیا. سیکر ایک خبیث آدمی سیکر جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی تصویریں لگا کے وہ ان کی وہ دوسری شادی والی تصویریں لگا کے اس پہ طنز کرتا ہے، اور یہ علیم اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک احمدی پہ طنز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کو عقل دے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت چلاک ہوں. علیم صاحب آپ چلاک ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور کی طرف سے انسٹرکشنز آ گئی ہیں، گالیاں تو ہم نے نکالنی نہیں، اب چلاکی کا مقابلہ ہوگا. ہاں بالکل، آپ چلاک بنے، ہم چلاک بنیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ چلاک بنتا ہے. یہ ابھی رانا راشد صاحب آئے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو وہ کچھ دن پہلے عامر نذیر کی براڈ کے اوپر رباب کے بارے میں ڈسکس ہو رہی تھی، جس کو وہ مسلمان ہی نہیں مانتے. اور جب یہ رانا راشد صاحب نے جا کے اپنی کوئی سجیشن ادھر پیش کرنے کی کوشش کی تو ان کو روک دیا گیا، ان کو مسلسل روکا گیا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، آپ کو اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں. اور یہاں پر یہ علیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب ان کو بلا رہے ہیں ایک حضور کے خطبے کے اوپر کہ آپ آ کے اپنا موقف رکھیں. یہ عجیب سی بات ہے. ان کی غیرت ایمانی یا غیرت دینی کہتے ہیں، یہ صرف مار لو، بقایا ماؤں ان کی اپنی ماؤں بہنوں کے بارے میں جو غیرت ہے وہ قائم رکھتے ہیں، لیکن غیرت دینی کہتے ہیں نہیں، وہ ختم ہونی چاہیے. ہم سر لوگوں کو اس کا چہرہ یہی دکھانا ہے ہم نے. ایک تو ڈاکٹر زکریا صاحب اور علیم صاحب، آپ کو تو